Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 3rd, lesson 3rd. Now I am going to complete your exercise of lesson 3rd and question answer. So first type question is take the right answer. First question, the world's highest mountain peak is A. Mount K2, B. Mount Everest, C. Kanchenjunga. So correct answer is Mount Everest, and Mount K2 is the highest peak in India and second highest peak in the world, and Kanchenjunga is the third highest peak in the world and second highest peak in India, is located in Sikkim. Second question, the type of soil found in the southern plateau is A. red, B. black, C. loam. So correct answer is black, and black soil is suitable for cotton and oil seeds. Third, the Thar desert is in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan, C. Maharashtra. So our correct answer is Rajasthan. Give one word for the following terms. A dry sandy area. A dry and sandy area is called the desert. Second, large areas of flat land. Large area of flat land is called plains. A table-like land. A table-like land is called a plateau. The home of snow is called Himalaya. Third question, fill in the blanks. Choose the right word from the box. Cotton, plateau, south, northern. First is high mountains can be seen in the distance, northern part of India. जो हाई माउंटेन्स है वो इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में है. Second, the northern plains are found to the west of India, south of India. Third, the black soil is good for growing cotton. The southern part of India is a plateau. Name the following questions. Answer the following questions. First question is name the 6 main physical divisions of India. Answer, the 6 main physical divisions of India are: first, the northern mountains; second, the northern plains; third, the plateaus; fourth, the great Indian desert; fifth, the coastal plains; and sixth, the island. Second question is name 3 rivers that originate in the Himalayas. Answer, Ganga, Yamuna and Brahmaputra rivers originate in Himalayas. क्वेश्चन है कि हिमालय से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, तो गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेनिनसुला एंड अ आइलैंड? A peninsula is a piece of land surrounded by water on 3 sides, and an island is a piece of land surrounded by water on all sides. पेनिनसुला और आइलैंड में एक एक डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो पेनिनसुला ऐसा लैंड होता है जो 3 साइड वाटर से घिरा होता है, बट आइलैंड ऐसा भाग होता है लैंड का जो पूरे ऑल साइड वाटर से घिरा होता है. पेनिनसुला में किसी भी 3 साइड वाटर होंगे और आइलैंड में पूरे साइड से वाटर ही वाटर से घिरे होंगे. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्लेट्यू? विच पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू? आंसर, अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होते हैं? पठार. प्लेट्यू मीन्स पठार. तो पठार अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, किसी भी फ्लैट लैंड का जो हाई ऊपर किनारे की लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ लैंड होता है,
वो प्लेट्यू कहलाता है, और इंडिया में साउथर्न पार्ट में प्लेट्यू है। विच डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? राइट एनी टू स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस डेजर्ट। Answer is the Great Indian Desert or Thar Desert lie in the northwestern part of India, and two special features are: first, there is little or no rainfall, so no crops grown here, and second is cactus and bubble are the main plants. क्वेश्चन था कि डेजर्ट इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा डेजर्ट है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या फिर उसी को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ की कोई टू स्पेशल फीचर्स बताने थे। तो थार डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ रेनफॉल नहीं होती, रेनफॉल ना होने की वजह से वहाँ भी कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। और यहाँ पे जो प्लांट ग्रो भी करते हैं वो कैक्टस और बबूल, मोस्टली कैक्टस और बबूल ही यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। Look at some important definition of lesson third. First, peninsula. Peninsula means प्रायद्वीप. A piece of land surrounded by water on three sides is called peninsula. पेनिनसुला प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप ऐसा लैंड का भूभाग होता है जो किसी भी थ्री साइड वाटर से घिरा होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। सेकेंड, आइलैंड. आइलैंड मीन्स द्वीप. A piece of land surrounded by water by on all sides is called island. द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा लैंड का भूभाग होता है जो पूरे साइड वाटर से घिरा होता है, वो द्वीप कहलाता है। कॉन्टिनेंट. A continent is commonly defined as a large landforms separated from other land masses by ocean. कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. महाद्वीप क्या होता है? तो लैंड का कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ पानी से तो घिरा ही होता है, साथ में वो किसी भी ओशियन से या सी के थ्रू वो अलग होता है, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। माउंटेन मीन्स पहाड़. अ माउंटेन्स इज अ लार्जर लैंडफॉर्म्स दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग लैंड, इज अ लिमिटेड एरिया यूजली इन द फॉर्म ऑफ पीक. अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर दैन अ हिल. पहाड़ ऐसा भूभाग जो ऊंचाई पर उठा हुआ होता है और अपने किनारे किनारे के क्षेत्र से ज़्यादा ऊपर उठा होता है और उसकी एक एरिया सीमित होती है, उसे हम पहाड़ कहते हैं। हिल पहाड़ी. अ हिल इज़ अ लैंड फॉर्म्स दैट एक्सटेंड एबव द सराउंडिंग. पहाड़ी ये पहाड़ के कंपेयर में छोटा होता है और यह भी लैंड से ऊंचा उठे हुए भाग को हम पहाड़ी कहते हैं। प्लेट्यू. अ लार्जर हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू. कोई भी बड़ा एरिया लैंड का जो ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर उठने के बाद वो ऊपर से क्या होगा? समतल होगा. मतलब किनारे किनारे के लैंड से तो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, लेकिन ऊंचाई पर होने के बावजूद भी जब आप देखेंगे तो ऊपर से पूरा फ्लैट होगा, इसको हम पठार कहते हैं, प्लेट्यू. डेजर्ट रेगिस्तान. अ ड्राई एंड सैंडी एरिया इज कॉल्ड अ डेजर्ट. किसी भी सूखे हुए और रेतीले भाग को हम डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज ऑफ लेसन थर्ड. थैंक यू.